कांकसा के मलानदिघी स्थित सरस्वतीगंज में पिछले 2-3 दिनों से भयंकर दहशत का माहौल बना हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार यहां पर अज्ञात कारणों से अब तक 12 से 14 मवेशियों की अचानक मौत हो चुकी है। मालिकों का कहना है कि दिन में चरने के बाद गाय स्वस्थ अवस्था में घर लौटती है, लेकिन रात होते ही स्थिति बदल जाती है। सुबह गौशाला खोलते ही मृत मवेशी दिखाई देते हैं। स्थानीय किसानों के अनुसार पहले गायों का पेट असामान्य रूप से फूल जाता है और उसके बाद वे दम तोड़ देती है। हालांकि अब तक ब्लॉक के पशुपालन विभाग की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है, लेकिन इससे किसान बेहद ही परेशान और भयभीत है। इस बारे में मवेशी मालिक उमा रॉय ने रूंधे स्वर में अपनी बातें रखी। इसी बीच कांकसा पंचायत समिति के अध्यक्ष भवानी भट्टाचार्य ने भी इस मामले में अपने वक्तव्यों को रखा। দেখাশোনা করছিলাম আমি, সারা রাত দেখলাম, সকালে দেখি মরে গেছি, বুঝলে। নিয়ে বাচ্চাদের তারপর ভালো খাওয়ালাম দোয়ালাম, আর সকালে দেখছি আবার পেট ফেপে গেছি, বুঝলে। আগে কোনোদিন হয়েছে এরকম? না। আপনি যে এত বছর এখানে রয়েছেন, না কোনোদিন হয়নি? নেই, প্রথম? হ্যাঁ, এই প্রথম হচ্ছে। আজকাই মরে গেছি। ভয় লাগছে না আপনাদের? হ্যাঁ, কি জন্য? ভয় লাগলে কি করবো, কি উপায় নাই। আমরা গরু চড়ে এসছি কালকে, চড়ে এসছে সকালবেলা গরুটা খুলতে যাচ্ছি, তখন দেখছি গরুটা এরকম ঝটপট করছে। আর সকালে তো ফোন করছি ডাক্তারকে, ডাক্তার আসছে, খালি বলছে আসছে, ডাক্তার আসছে না। এটা বাছুর দেখছি কিছুদিন আগেই হয়েছে নাকি বাছুরটা? না, কিছু হয় না। কালকে খেয়ে দিয়ে গরু পালিয়ে গেছে, দিয়ে পরে দুপুরবেলাতে আসছে যখন খোড়াইছে, তখন গরুটা খোড়াইছে, গরুটা দিয়ে সারা রাত ধূপ দিয়ে দিচ্ছি, ধুনা দিচ্ছি, ধূপ দিচ্ছি, আর তারপর সেক দিচ্ছি, তো গরুটা কিছু হইলো না। তো সকালবেলা বার করছি, তখন গরু চিঠাই দিচ্ছে। না, এই যে হচ্ছে না, না কি হচ্ছে না, গরু ঠিক পালা থেকে আসছে, ঘরে ঘাস খাইছে রাত্রে, নাকি মাড়ও দিচ্ছে, মাড়ও খেয়েছে, সবই খেয়েছে, কিন্তু কি করে মরে যাচ্ছে রাতের মধ্যে বুঝতে লাগছে। মানে হঠাৎ কিছু রোগ হয়ে যাচ্ছে নাকি? হ্যাঁ, পেট গেলে ফেপে গেছে, আদৌ এই গরুটারও পেটটা ফেপে গেছে, বুঝতে পারছি না। কত গরু আছে আপনাদের পাড়াতে? মোটামুটি অনেক গরু আছে, গোটা গায়ের লোকের গরু আছে, প্রত্যেকটি ঘরে গরু আছে। বুঝতে পারছি না, ডাক্তার, আমার ডাক্তার হলে বুঝতে পারবো, ডাক্তার হলে বুঝতে পারবো। আমরা তো বুঝতে পারছি, হঠাৎ এরকম গরু আনছি, ঘরে আসছে রাত্রে, দেখছি হঠাৎ এরকম রাত্রে খাইলে সব হলো, মরে যাচ্ছে নাকি? মরে যাচ্ছে। কতগুলো মরেছে পাড়ার? মোটামুটি 8-10টা মারা গেছে বাছুর ফাছুর নিয়ে। কোথায় চড়াতে যান? এই জঙ্গলে। আচ্ছা, নিয়ে আসেন, তারপরে ঘরে ঠিক রয়েছে দেখছি এসে, তারপর রাত্রে খাবার দিচ্ছি ঠিক রয়েছে, আবার সকালে দেখছি গরু মারা পড়ে রয়েছে গোয়ালে। আপনারা জানিয়েছেন ব্লকে? ব্লকে জানাইনি এখনো। আমরা এক্ষুনি জানতে পারলাম যে আমাদের কাঁকসা ব্লকের মলানদিঘি গ্রাম পঞ্চায়েতে সরস্বতীগঞ্জে বেশ কিছু গরু একটা অজানা রোগে মারা গেছে। গরু মাঠে চড়তে যাওয়ার পরে, যেহেতু জঙ্গল ঘেরা এরিয়া, তারপরে মারা গেছে। কয়েকটা কালকে নাকি 5টা মারা গেছে, আগের দিনেও মারা গেছে। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। এবারে পালকি ছোড়ে আসবে উমা বাড়িতে, পুজোতে থাকবে কদিন, ফিরবে ঘোড়ার গাড়িতে। বাজা বাজা ঢাক বাজা, প্যান্ডেলে আলো সাজা, এসেছে সময় এবার জমিয়ে নাচা। পুজোতে শপিং মানি কসমো বাজার, প্যান্ডেলে হপিং মানি কসমো বাজার। কসমো বাজার, পুজো শপিং টু প্যান্ডেল হপিং, সঙ্গে রয়েছে দারুণ আকর্ষণীয় উপহার। पश्चिम बर्धमान जिले के जामुड़िया विधानसभा क्षेत्र के श्यामला ग्राम पंचायत अंतर्गत भूरी गांव का एक परिवार पिछले कई वर्षों से गहरे संकट से जूझ रहा है। बता दें कि दिहाड़ी मजदूरी कर किसी तरह गुजर बसर करने वाले राहुल बंदोपाध्याय अपनी पत्नी के इलाज के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। बताया गया है कि राहुल का विवाह वर्ष 2020 में अनीता बंदोपाध्याय से हुआ था। शादी के बाद दोनों का जीवन सामान्य रूप से चल रहा था एवं विवाह के कुछ समय के बाद
ही उनके घर बेटी का जन्म हुआ। बच्ची के आने से परिवार की खुशियां और भी बढ़ गई थी, लेकिन इन खुशियों के बीच अचानक दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अनीता ने बेटी के जन्म के 7 माह बाद से ही आंखों में परेशानी महसूस करनी शुरू की। हालांकि शुरू में धुंधला दिखाई देना और बाद में धीरे धीरे दृष्टि कम होती चली गई। विभिन्न स्थानीय डॉक्टरों से इलाज कराने के बावजूद कोई सुधार नहीं हुआ। इसके बाद राहुल ने अपनी पत्नी को लेकर दुर्गापुर के नामी अस्पतालों से लेकर बेंगलुरु तक दौड़ लगाई, परंतु सीमित आर्थिक संसाधनों और लगातार बढ़ते इलाज के खर्च के कारण बीच रास्ते में ही इलाज छोड़ना पड़ा और आज अनीता पूरी तरह से दृष्टिहीन हो चुकी है। राहुल रोजाना दिहाड़ी मजदूर कर किसी तरह परिवार का भरण पोषण करते हैं। घर में माँ बेटी की जिम्मेदारी के साथ पत्नी का इलाज कराना उनके लिए नामुमकिन जैसा हो गया है। जो भी थोड़ी बहुत बचत थी वह पहले ही खर्च हो चुकी है। अब हालात ऐसे हैं कि राहुल गांव की गलियों, दुकानों और पड़ोसियों के घर घर जाकर आर्थिक सहयोग मांग रहे हैं। इस बारे में राहुल ने अपनी बातों को साझा किया। वहीं गांव के लोगों का कहना है कि राहुल बेहद ही ईमानदार और मेहनती इंसान है, लेकिन गरीबी और हालात ने उन्हें तोड़ कर रख दिया है। हालात अब ऐसे बन चुके हैं कि अब उनका पूरा परिवार समाज की संवेदनशीलता और सहयोग की ओर टकटकी लगाए बैठा है। ঘটনা হয়েছিল 2020 যখন চলে, তখন একদিন হঠাৎ বিকেলে বলছে মাথা ঘুরছে না, তো বইয়ের মাথা ঘুরছে। তো আমি শিগগিরই নিয়ে গেলাম আমার শ্বশুর বাড়ি কাজরা, সেখানে দেখালাম। তো বলছে আইকেসিটা নিয়ে যা, কেউ বলছে দিশা নিয়ে যা, কেউ বলছে মানে নানা পেতাম নানা জায়গায় বলছে। তো আমি প্রথম গেলাম দিশা, সেখানে বললো চোখে কোনো প্রবলেম নেই। তারপর চলে গেলাম আমি নাইস ক্লাব, সেটা সিটি সেন্টারের কাছে। তারপরে আমি আইকেসিটা ভর্তি করলাম, আইকেসিটা ভর্তি করে বলতে 1 মাস ঠিক ছিল, আবার গন্ডগোল জানাই। তারপর গেলাম আমি মোরারডি হাসপাতাল গেলাম, তখন বলছে এই নার্ভের প্রবলেম, তুমি ভালো জায়গায় ডাক্তার দেখাও। তো সবাইকে জিজ্ঞেস করলাম কোথায় নার্ভের ভালো ডাক্তার, সবাই বললো ব্যাঙ্গালোর। তো আমি ব্যাঙ্গালোর নিয়ে গেছিলাম, ব্যাঙ্গালোরে 1 মাস ছিলাম। তো ব্যাঙ্গালোরে খুব টাকা পয়সার খুব চার্জ, তা আমি ওখানে গিয়েছিলাম 2 একবার। তো পয়সার জন্যে আমি এখন চিকিৎসা করাতে পারিনি। আসলে সমস্যাটা কি আপনার? সমস্যা চোখে দেখতে পেছি না, মানে ওই বিয়ের পর থেকেই? হ্যাঁ, বিয়ের পর থেকে মানে বাচ্চা হওয়ার পর। কত সালে বিয়ে হয় আপনার? আমার হচ্ছে 2020-তে বিয়ে হয়েছে। আচ্ছা, তারপরে যখন সমস্যা বলতে রাহুল বাদ্যকর আমাদের গ্রামেরই ছেলে, আমরা চিনি এবং জানি। এর স্ত্রী বিবাহের পরে এর স্ত্রীর একটা সন্তান হওয়ার পর মানে ব্লাইন্ডনেস চলে আসে, মানে চোখে অন্ধত্ব চলে আসে। সেই অন্ধত্বের ফলে বহু জায়গায় বিভিন্ন হসপিটালে, চোখের হসপিটালে দেখিয়েছে, কিন্তু কোনো সুরাহা হয়নি। তাই বাইরে কোথাও নিয়ে যাওয়ার জন্য, বড় জায়গায় বড় সেটআপে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের গ্রামে গঞ্জে রাস্তাঘাটে সবারই কাছে আদায় করছে। আমরাও যে যতটা পাচ্ছি দিচ্ছি, এবং দেওয়া তো দরকার। হ্যাঁ, যেহেতু কম বয়সে একটা মেয়ে এরকম ব্লাইন্ডনেস চলে এসছে। जामुड़िया से दिलीप साहू की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। सो मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के NSD रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर्स कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली AC
इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर रानीगंज मंडल 1 के नेतृत्व में आज से सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस मौके पर रानीगंज के स्कूल मोड़ इलाके में रोटी गाड़ी के माध्यम से राहगीरों को रोटी, सब्जी और मिठाई वितरित की गई। वहीं कार्यक्रम में भाजपा नेता एवं रानीगंज मंडल 1 अध्यक्ष शमशेर सिंह, जनरल सेक्रेटरी राजा भौमिक, शंकर साव, देव कुमार बोस, आसनसोल संगठन जिला समिति के सदस्य रवि केसरी, शक्ति केंद्र के राहुल बर्बन, सिकंदर शर्मा, जय सिंह, विवेक सिंह समेत कई कार्यकर्तागण उपस्थित थे। इस मौके पर अध्यक्ष शमशेर सिंह ने अपनी बातें साझा की है। माननीय हमारे रवि का ये कार्यक्रम आज हम लोग माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर हम लोग कर रहे हैं। माननीय हमारे रवि का ये कार्यक्रम आज हम लोग माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर हम लोग कर रहे हैं। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। বাজে বাজে ঢাক বাজা প্যান্ডেলে আলো সাজা এসেছে সময় এবার জমিয়ে নাচা পুজোতে শপিং মানে কসমো বাজার প্যান্ডেলে হপিং মানে কসমো বাজার কসমো বাজার পুজোর শপিং টু প্যান্ডেল হপিং, সঙ্গে রয়েছে দারুণ আকর্ষণীয় উপহার। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर अंडाल स्टेशन के समीप भाजपा कार्यालय में उनके दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना के लिए यज्ञ हवन का आयोजन किया गया। साथ ही इस अवसर पर आगामी विधानसभा चुनाव में मोदी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार बनने की भी प्रार्थना की गई। इस अवसर पर रानीगंज विधानसभा मंडल 4 के प्रभारी दिनेश सोनी ने अपने वक्तव्यों को रखा। साथ ही कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष रखाल दास, शंकर मिश्रा, दिनेश लाल, सोमनाथ नायक, विजय गुप्ता, जयंतो मिश्रा सहित कई भाजपा कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। आज रानीगंज विधानसभा मंडल 4 में मंडल 4 के उपाध्यक्ष भाई शंकर जी के नेतृत्व में मोदी जी का जन्मदिन पालन किया गया। आज के कार्यक्रम में मोदी जी के दीर्घायु होने के लिए और आगामी 2026 के चुनाव को लेकर के हवन किया गया कि मोदी जी दीर्घायु हों, भारत और भी यशस्वी बने और पश्चिम बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी की एक मजबूत सरकार बने। आज के कार्यक्रम में हमारे अंडाल के हॉकर भाई बहुत बड़ी उपस्थिति में आज यहाँ उपस्थित रहे। साथ ही यहाँ पर पंचायत समिति के सदस्य श्री दिनेश लाल जी, सोमनाथ नायक दा, जयंतो दा, गुप्ता जी, यहाँ हमारे सभी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। और आज का कार्यक्रम जो है, जो हम लोगों का सेवा पखवाड़ा जो है, भारतीय जनता पार्टी का जो एक कार्यक्रम आया है मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में, ये 7 दिन 10 दिन का जो है लगातार सेवा का काम चलता रहेगा। और रानीगंज विधानसभा में उसके साथ साथ मंडल 4 में भी ये सेवा पखवाड़ा का कार्यक्रम चलेगा। और आज के इस कार्यक्रम के बाद में जो है हम लोग अंडाल में स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम करेंगे। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। सो मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के NSD रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली AC
इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पूर्व बर्धमान जिले के शहर बर्धमान के तेलीपुकुर टोटो यूनियन ने इस वर्ष विश्वकर्मा पूजा में एक अनोखी मिसाल कायम की है। बता दें कि पूजा का मुख्य आकर्षण रही 31 फीट ऊंची विशाल विश्वकर्मा प्रतिमा, जिसे देख आम जनता से लेकर श्रद्धालु तक सभी मंत्रमुग्ध हो गए। एवं शनिवार को इस भव्य पूजा का उद्घाटन इलाके के काउंसिलर रसबिहारी हलदार ने किया। इस मौके पर उन्होंने अपनी बातें रखी। बताया जा रहा है कि तेलीपुकुर टोटो यूनियन पिछले 15 वर्षों से विश्वकर्मा पूजा का आयोजन करती आ रही है। हर साल कुछ खास आकर्षण तो होते हैं, लेकिन इस बार की 31 फीट ऊंची प्रतिमा पूजा के इतिहास में एक नई उपलब्धि है। इस विशाल मूर्ति को देखने के लिए इलाके में पहले ही भारी भीड़ उमड़ पड़ी है एवं स्थानीय निवासियों के साथ साथ दूर दराज से भी लोग इस अद्भुत प्रतिमा की एक झलक पाने के लिए आ रहे हैं। वहीं पूजा मैदान में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन की ओर से विशेष इंतजाम किए गए हैं। आयोजकों के अनुसार इस प्रतिमा की केवल ऊंचाई ही नहीं बल्कि इसकी कलात्मक सुंदरता, शिल्प कला की बारीकी और सृजनात्मकता भी दर्शकों को आकर्षित कर रही है। पूजा के मुख्य दिनों में भीड़ और अधिक बढ़ेगी, आयोजक ऐसी उम्मीद जता रहे हैं। তেলিপুকুর টোটো ইউনিয়ন কমিটির পক্ষ থেকে আজকে এই বিশ্বকর্মা পুজো 31 ফুটে বিশ্বকর্মা শুধু জেলা নয়, এটা রাজ্যব্যাপী আজকে সেরা পুজোতে পরিণত হয়েছে বিশ্বকর্মা পুজো। আমরা অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। আমি পুজোর উদ্বোধন করলাম এবং তার সাথে সাথে মানুষকে বস্ত্র বিতরণ, বিভিন্ন সামাজিক কাজ করে তেলিপুকুর টোটো ইউনিয়নের গোপাল আছে তাদের উদ্যোগে। না, 15 বছর ধরে চলছে। তারা প্রত্যেক বছর বিশেষ আকর্ষণ রাখে। এবারে 31 ফুটের প্রতিমা। হ্যাঁ, 31 ফুটের প্রথম। এটা শুধু পূর্ব বর্ধমান জেলা, সারা রাজ্যব্যাপী এই পুজো আজকে বিশেষ জায়গায় পরিণত হয়েছে। 31 ফুটের প্রতিমা সারা রাজ্যেই প্রথম। বিশাল মানুষের উৎসাহ। কাল থেকে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রতিমা নিয়ে বিশেষ আকর্ষণ আমরা দেখতে পেরেছি। মানুষের ভিড় পড়বে। এর আগের বছরও প্রচুর ভিড় হয়েছিল, এবারও প্রচুর। আজকে থেকেই ভিড় জমে গেছে। ब्यूरो रिपोर्ट, PVTV न्यूज। কসমো বাজার, পুজোর শপিং টু প্যান্ডেল হপিং। डुआर्स में फिर एक तेंदुए ने किया हमला और एक किशोर को उसके घर के आंगन से घसीट कर ले गया। आपको बता दें कि यह घटना मंगलवार शाम डुआर्स के नागराकाटा ब्लॉक के दक्षिण खेरकाटा इलाके में हुई है, जब एक तेंदुआ अचानक 12 वर्षीय आकस्मिक रॉय नामक एक किशोर को उसके घर के आंगन से घसीटकर जंगल में ले गया। घायल अवस्था में उसे बचाकर सुलखापाड़ा ग्रामीण अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने किशोर को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद अस्पताल परिसर में तनाव फैल गया। निवासियों ने सवाल उठाया कि धीरे धीरे आदमखोर होते जा रहे तेंदुओं के हमलों को कब रोका जा सकेगा। खबर मिलने के बाद नागराकाटा थाने के आईसी, खुनिया रेंज के रेंजर सजल कुमार रॉय और डायना रेंज के वनकर्मी अस्पताल पहुंचे। गौरतलब है कि इससे पहले भी एक तेंदुआ दक्षिण खेरकाटा इलाके से एक किशोर को घसीटकर ले गया था। ऐसा कहा जा रहा है कि उस घटना के बाद से एक के बाद एक तेंदुए के हमले हो रहे हैं। देखा जाए तो इसे लेकर वनकर्मियों और प्रशासनिक समुदाय में काफी चिंता है एवं वनकर्मी तेंदुओं के हमलों को रोकने का कोई रास्ता निकालने की कोशिश भी कर रहे हैं। इसी बीच लगातार 2 तेंदुओं को पिंजरे में बंद कर दिया गया, जिससे थोड़ी राहत तो मिली, लेकिन मंगलवार की घटना ने इलाके में फिर से दहशत का माहौल बना दिया है। पुलिस ने देर रात शव को अपने कब्जे में ले लिया और आज उसे पोस्टमार्टम के लिए जलपाईगुड़ी भेजा जाएगा। আজকে আমাদের খেরকাটা আংরা ভাষাওয়ান অন্তর্গত খেরকাটা বস্তিতে ও সন্ধ্যার দিকে মানে 6:30টার দিকে
মানে একটা দুঃখজনক ঘটনা যে ঘটলো। তো মানে ল্যাপেট অ্যাটাক করছে একটা বাচ্চাকে। বাচ্চাকে কি নাম বাচ্চার? বাচ্চার নাম হলো অস্মিত রায়। অস্মিত রায়। হ্যাঁ, তো কি হয়েছে বাচ্চাটা এখন? তো বাচ্চাটা মানে সামনে মানে 2-3টা বাড়ির একটু নিচে একটা দোকান ছিল, মানে দোকানে কোনো সামান কিনতে গেছিল মনে হয়। আচ্ছা, 6টা 6:30টার দিকে। তো আসার পথে এরকম ঘটনা ঘটছে। ওকে কোথায় নিয়ে যায় তুলে মানে ওই সামনে গুয়াবাড়ি না কোলা, ওই যে কোলার থপ ছিল ওইখানে পৌঁছাছিল, কিন্তু ওই যে আওয়াজ শুনছে, আশেপাশের লোক আওয়াজ শুনছে, তো দৌড়ায় গিয়ে বাঘটাকে ছড়ায় নিয়ে বাড়িতে আসলো। বাঘের মুখ থেকে ছাড়াইছে? হ্যাঁ, মুখ থেকে ছাড়াইছে। তো মানে ও কিন্তু বাঁচাতে পারলো না। হ্যাঁ, তখন ও কিন্তু মানে একটু মানে ছিল প্রাণটা ছিল। তো আনার সময় আমরা রাস্তাতে ওদেরকে পাইছি, তো তুলে আমরাই নিয়ে আসলাম হসপিটাল। তখন কিন্তু রাস্তাতে ছিল প্রাণটা। আচ্ছা, হাসপাতালে মারা গেছে? হ্যাঁ, হাসপাতালে ডক্টরবাবু বলে দিয়েছেন মারা গেছে। আপনার নামটা কি? আমার নাম সুরজ শেখ। ब्यूरो रिपोर्ट PVTV न्यूज। এবারে পালকি ঝরে আসবে উমা বাড়িতে, পুজোতে থাকবে কদিন ফিরবে ঘোড়ার গাড়িতে। বাজা বাজা ঢাক বাজা, প্যান্ডেলে আলো সাজা, এসেছে সময় এবার জমিয়ে নাচা। পুজোতে শপিং মানি কসমো বাজার, প্যান্ডেলে হপিং মানি কসমো বাজার। কসমো বাজার, পুজোর শপিং টু প্যান্ডেল হপিং, সঙ্গে রয়েছে দারুণ আকর্ষণীয় উপহার। साइबर थाना कोलकाता में दर्ज कांड संख्या 4925 के तहत चल रहे जांच के सिलसिले में 16 सितंबर की रात को साइबर क्राइम ब्रांच डिटेक्टिव डिपार्टमेंट की टीम द्वारा कोलकाता के विभिन्न स्थानों पर एक बड़ा छापा मारा गया है। ऐसा कहा जा रहा है कि यह मामला कोलकाता में स्थित फर्जी और धोखाधड़ी वाले कॉल सेंटर्स के संचालन से जुड़ा है, जहां से VoIP कॉल्स के जरिए संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिकों को पेपाल जैसी प्रसिद्ध फिनटेक कंपनी के कर्मचारियों के रूप में खुद को प्रस्तुत करके फर्जी तकनीकी सहायता, रिफंड या चार्जबैक का झांसा देकर ठगा जाता था। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस छापेमारी में आइडियल हाइट की 2 फ्लैटों से कुल 10 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें FIR में नामित अभियुक्त जावेद खान भी शामिल है, जिनकी भूमिका मामले में प्रत्यक्ष पाई गई है। वहीं गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से 10 मोबाइल फोन, 8 लैपटॉप, 1 एयरटेल राउटर, सोने जैसी भारी मात्रा में आभूषण, 10,15,000 रुपए नगद, आपत्तिजनक स्क्रीनशॉट्स, 3 लेखन कॉपियां जिनमें स्कैम कॉल सेंटर के संचालन और पैसों का विवरण दर्ज है, एक स्कॉडा स्लेविया कार और एक महिंद्रा XUV 700 कार एवं ये दोनों जावेद खान के नाम पर है। 10 महंगी घड़ियां, एक रजिस्ट्री डीड जावेद खान के नाम, एक्वा गोल्फ विला फेज 1, विला नंबर 11, माप 3.5 कट्ठा, और ये सभी बरामद किए गए हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि गिरफ्तार किए गए सभी अभियुक्तों को आज संबंधित न्यायालय में पेश किया जाएगा। साथ ही पुलिस की आगे की जांच भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट PVTV न्यूज। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। सो मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के NSD रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर्स कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली AC इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए, तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बांग्लादेश की चांदी सी चमकती इलिश मछली आखिरकार सीमा पार कर भारत में प्रवेश कर चुकी है। कहा जा रहा है कि मंगलवार से ही बांग्लादेश ने औपचारिक रूप से इलिश मछली का निर्यात शुरू कर दिया है। बांग्लादेश के वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी एक आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है कि 5 अक्टूबर तक भारत को इलिश मछली का निर्यात किया जाएगा और इसी क्रम में बुधवार की भोर में बनगांव के पेट्रापोल सीमा के जरिए भारत में पहली खेप के तौर पर 3 ट्रकों में
में करीब 32 मीट्रिक टन इलिश मछली भारत पहुंची है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बुधवार की सुबह तक और भी इलिश मछलियां भारत में प्रवेश करेंगी। इस खबर से कोलकाता और आसपास के बाजारों में उत्साह की लहर दौड़ गई है। बुधवार सुबह से ही कोलकाता के थोक और खुदरा बाजारों में इलिश दिखने लगी है। बता दें कि हर साल की तरह इस बार भी बांग्लादेश से आने वाले इलिश को लेकर बंगाल के बाजारों में खास उत्साह देखा जा रहा है और खासकर दुर्गा पूजा के पहले यह आपूर्ति मछली प्रेमियों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं। ধরো এই পাশে আলো নিয়ে এসো। ब्यूरो रिपोर्ट PVTV न्यूज। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। सो मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के NSD रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली AC इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अंडाल के धुपचुरिया में ग्रीन माउंटेन सिटी डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड की ओर से विश्वकर्मा पूजा के शुभ अवसर पर सैकड़ों जरूरतमंदों को वस्त्र वितरण किया गया। इस दौरान ग्रीन माउंटेन सिटी डेवलपर के डायरेक्टर अभय मुखर्जी ने अपने वक्तव्यों को रखा। वहीं इस मौके पर ग्रीन माउंटेन सिटी डेवलपर के डायरेक्टर चंद्राणी मुखर्जी, अभय मुखर्जी और उनकी माता मंजू मुखर्जी, अंडाल थाना के SI उत्पल दत्ता तथा अन्य सदस्यगण भी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। সামনে দুটো পুজো কি বার্তা দেব? এটা আমার খুব ভালো লাগে, মন থেকে করি। তো কিছু মানুষকে শাড়িটা দিতে পারি, একটু নাচ দিই, এটা ভালো লাগে। দুর্গা পুজো মায়ের আগমনের আগে মনে হয় মারা এসছেন, সবাই মা, তো তারা এসছেন আমার বাচ্চাদেরকে নিয়ে, যেন ওদেরকে দিতে পেরে আমার বাচ্চারাও যেন পড়তে পেরে আমাদের পুজো যেন ভালো থাকে। কি উদ্দেশ্য নিয়ে প্রোগ্রামটা করলেন আপনারা? উদ্দেশ্য হচ্ছে বেশ কিছু মানুষ, দেখুন সবাইকে তো সম্ভব নয়, বেশ কিছু মানুষ মনে হয় যারা পুজোর সময় আমি আমার বাচ্চারা নতুন শাড়ি পরবো, নতুন পরবো, তো তারাও কিছু পড়ুক। তো যারা একদম নিডি, যারা পারে না, যাদের সম্ভব নয়, তাদেরকে চেষ্টা করি যে বছরের এই দিনটাতে আমরা কিছু সাহায্য করবো, কিছু শাড়ি দেবো। চন্দ্রানী মুখার্জি, আমি গ্রিন মাউন্টেন সিটি প্রাইভেট লিমিটেড ডাইরেক্টর। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट PVTV न्यूज। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। सो मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के NSD रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली AC इंटीरियर,
इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।